Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear participants, this is Dr. Nazneen Akhtar from IRC Technical Institute, and today we have gathered here to discuss cloud computing and DevOps. This is a course where two combinations of technologies take place. We have a trainer who has been trained in Pune and he is having some experience and he is AWS certified as well. So he will be introducing himself. So I request our trainer Hussein sir to take the charge and start his presentation. Sir, you're not audible. हेलो हाँ अब आ रही है सर आपकी आवाज़. जी। Can you share the लेट PPT? जस्ट गिव मी अ मिनट। Sure, sure. Take your time. Yes, screen is visible for us. ओके, so first of all let me introduce myself. So my name is Mohammad Hussain Jafri. First, let me thanks to Dr. Ms. Nazneen Akhtar Madam for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Mohammad Hussain Jafri. I am graduated from MGM Dr. G.Y. Patrikar College of Computer Science and IT. I have completed my DevOps training from Unnati Institute and Pune Institute. I am currently interning at Technologies as an DevOps intern. Previously, I have been interning at Vital Global Private Limited in Hyderabad. So yeah, this is my introduction. So the agenda for today's session is why DevOps, infographics, the power of DevOps, course details, syllabus and fees, and the schedule and fees, and the syllabus what we are going to do in this course. So basically, why DevOps? DevOps is the professional. Hello. Yes, sir, you're audible. Please continue. Yeah. DevOps is a professional course, which is the five most demanding roles in tech stack. So basically DevOps क्या है? एक कल्चर है, एक मेथडोलॉजी है जो डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस के बीच में काम करता है. तो this is what it is written here. DevOps is a bridge between the developer and the operation. DevOps is more than just a methodology. It is a culture shift that, sorry, that emphasize collaboration between the development and operation team to deliver software faster and reliable with a greater efficiency. By integrating automation, monitoring, and continuous feedback loops, DevOps enables organizations to adapt to the rapidly changes tech.
टेक लैंडस्केप। मतलब ये क्या करता है डेवॉप्स, इसके अंदर एक कंप्लीट पाइपलाइन चलती है जो कंटिन्यूस CI/CD बोलते हैं इसको, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिलीवरी। सो उसके अंदर आपका जो भी एप्लीकेशन रन होता है वो स्मूथ और एक ऑटोमेटेड मैनर में रन होता है। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द डेवऑप्स। एंड आई एम गोइंग टू, मेरे को डेवऑप्स और क्लाउड के बीच में भी एक वो लेना था, अपने कॉम्बिनेशन बहुत सारों को, मतलब एक डाउट था कि डेवऑप्स क्या होता है और क्लाउड क्या होता है। तो बेसिकली क्लाउड एक चीज होती है, मीन्स लाइक आपके पास जो लोकल सिस्टम है, तो वही सिस्टम एक रिमोट जगह पे रखा हुआ होता है कहीं ना कहीं। वो रिमोट जगह पे आपका सब कुछ होता है, लाइक नेटवर्किंग पार्ट होता है और उसके सारे जितने भी आपको एक एप्लीकेशन चलाने के लिए जितना भी यूटिलाइजेशन लगता है सिस्टम का, वो सब होता है। अब उसके प्रोवाइडर्स कौन कौन है, लाइक AWS हो गया, अज्योर हो गया और GCP हो गया, ये पब्लिक क्लाउड है। तो उसके अंदर ये क्लाउड है और ये उनके प्रोवाइडर्स है, लाइक अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर देता है और गूगल GCP देता है। तो ये लोग अपने अपने जो भी क्लाउड के रिसोर्सेस है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इनके थ्रू आपको डेवऑप्स से मतलब क्लाउड, AWS क्लाउड के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए काम में आता है। लाइक आपका कोई एप्लीकेशन है, लाइक कंटेनर है, तो उसको भाई कितना CPU लगेगा, कितना रैम लगेगा, कितना मेमोरी लगेगा, तो आप वो क्लाउड रिसोर्सेज से ले सकते हैं। अब भाई वहां से क्यों लेना है, क्योंकि आपका ये जो सिस्टम है ये इतना हैवी एप्लीकेशन के चलाने के थ्रू, या इतना जैसा इसके जो मेन व्हाट यू कैन से डेवऑप्स जिसके लिए बना है, फास्ट फास्ट डिलीवरी के लिए, सेट रिलायबिलिटी के लिए और स्केलेबिलिटी के लिए जो मशहूर है, तो वो इतना आपके लोकल सर्वर पे नहीं होगा। तो वो हमको लेना है AWS से, जो कि जहाँ बहुत सारे सर्वर्स रहते हैं और सर्वर्स का क्लस्टर रहता है, वहां से जो कुछ भी मैनेज होता है, जितना अपने को रैम CPU चाहिए तो आपको मिल जाता है। सो बेसिकली दिस इज व्हाट द कॉम्बिनेशन इज। एंड इसके अंदर मेन रोल्स के लिए आप अगर क्लाउड स्पेसिफिक क्लाउड ही आपको अगर करना है या स्पेसिफिक डेवऑप्स ही करना है, तो क्लाउड के लिए आप रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लाइक क्लाउड इंजीनियर और क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर आता है। तो ऐसे डिफरेंट रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डेवऑप्स तो प्रोफेशनली पूरा एक अलग ही डोमेन है, उसके अंदर तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब मेन टॉपिक आता है कि डेवऑप्स एक्चुअली करता क्या है और डेवऑप्स पर्सन एज इन कंपनी में करता क्या है। तो जैसा कि इसके अंदर स्लाइड में लिखा हुआ है कि ये एक मेथडोलॉजी है डेवलपर और ऑपरेशंस के बीच। तो आपको दोनों के बीच में काम करना है, जो डेवलपर इन द सेंस जो कोडिंग करता है, और ऑपरेशंस जो कि सर्वर संभालता है या उसके कॉन्फ़िगरेशंस को देखता है। तो ये दोनों के बीच, ये दोनों को आप ये गैप को फिल करना है दोनों के बीच के। तो बेसिकली इनसे आपको कोड लेना है और इनके कोड से आपको एक अपनी पाइपलाइन बनाना है, एक डॉकर की इमेज बनाना है और उसको रन करना है एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में सर्वर के। जैसा मैंने आपको अभी बताया, अपन क्लाउड से लेते हैं कोई भी चीज, तो उसको इन दैट सेंस अपने को एक पर्टिकुलर पाइपलाइन में चलाना है। तो ये आपका उधर काम रहेगा कि भाई एक इंस्टेंस लो, एक इंस्टेंस बना के उसको लॉन्च करो। उसके बाद आप एक उसको गिट से इंटीग्रेट करो, गिट एंड गिट हब से इंटीग्रेट करो। फिर उसके बाद वहां से कोड लो, कोड लेके डॉकर की इमेज बनाओ, डॉकर की इमेज बना के कंटेनर रन करो, उसको टेस्ट करो इमेज सही है या नहीं। लाइक अभी डेव सेक ऑप्स आ गए, मतलब सिक्योरिटी टूल्स बढ़ गए, उसके अंदर डिपेंडेंसी चेक्स रहते हैं, ट्री भी रहता है इमेज स्कैनिंग के लिए। तो वहां से इमेज स्कैन करो और फिर उसके बाद उसको एक प्रॉपर रजिस्ट्री में पुश करके रख दो, लाइक डॉकर रजिस्ट्री है। वहां से जब आप अगर ये अपने क्यूबरनेटिस में जब आप डॉकर इमेज पुल करेंगे, तो हम वहां से पुल करके उसको यूज कर सकते हैं। तो इन दैट सेंस ये ऐसा एक पूरा इन्फिनिटी टाइप साइकिल चलता है, जो कि आप ये नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसके अंदर इन्हें क्या बता रहा, कोड, बिल्ड, टेस्ट,
रिलीज, डिप्लॉय, ऑपरेट एंड मॉनिटर। तो ये एक पूरा इन्फिनिटी साइकिल चलते रहती है। जब आप कंप्लीट एक पाइपलाइन बन जाती है CI/CD की, जब आप एक कंप्लीट व्हाट यू कैन से कनेक्ट कर लेते हैं सब टूल्स को, तो ये ऐसा जब आप इस पे से गिटहब पे से जब कोड को पुल करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली सब चलते रहेंगे। ये ऐसा कोड, बिल्ड, टेस्ट, रिलीज, डिप्लॉय, ऑपरेट एंड मॉनिटर। तो ये इन द इन्फिनिटी साइकिल में ये चीजें चलते रहती है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसका भाई पावर क्या है मार्केट में, और ये अभी इतना क्यों बूम पे है। बेसिकली ये कैसा है, ये इसके रिलायबिलिटी और स्केलेबिलिटी के लिए माना जाता है डेवऑप्स। तो लाइक 80% कंपनीज जो है, टेक कंपनी है, जाइंट कंपनीज जो अपन बोलते हैं, अपने गूगल हो गया, amazon हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो ये सब यूज करते हैं। This strategy highlights how top organization rely on DevOps to stay competitive and agile. मतलब ये अजाइल जो वर्ड है, जो प्रीवियसली जो डेवॉप्स के लिए यूज होता था, मतलब ये सेम प्रोसेस पहले भी होता था, तो इसका नाम था अजाइल, बट ये इन मैनुअल मैनर में होता था, ये ऐसा ऑटोमेशन मैनर में नहीं होता था। ये अलग अलग टूल्स यूज करके अपना एक मैनुअल वे में इसको प्रोसेस करते थे। तो ये जो कंपनीज है जो अपने अपने लाइक गूगल जीसीपी क्लाउड यूज करके अपना डेवऑप्स प्रोजेक्ट करता है, amazon AWS यूज करके अपना प्रोजेक्ट डेवऑप्स का चलाता है। दूसरे जो कंपनीज है वो लोग ये तीनों अपने पब्लिक क्लाउड में से यूज करके अपने अपने डेवऑप्स के प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये अपने व्हाट यू कैन से मार्केट डिमांड है डेवॉप्स का। एंड इसके अंदर करियर लाइक करियर अपॉर्चुनिटीज में अगर अपन देखें, इसके अंदर अगर सैलरी स्केल देखें, तो टेक लीड का तो अभी मैं खुद अभी थोड़ी देर पहले देख रहा हूँ था कि अभी ग्लोबल में टेक लीड में कौन सा ऑपरेशंस में कौन से पोजीशन को सबसे ज्यादा पे है। तो इसके अंदर भी बताया है कि डेवऑप्स इंजीनियर के लिए इतना इतना पैकेजेस रहता, एक्सपीरियंस वालों के लिए इतना रहता, दूसरे फील्ड्स के लिए इतना इतना रहता। तो टॉप लीडिंग पे तो अभी काफी डेवऑप्स ही है। एंड व्हाट विल डू, अब यहाँ पे अपन कर जस्ट अ सेकेंड। अब ये कौन से हायरिंग प्रोसेस में यूज होता, और ये कौन से कंपनी यूज करते, कैसा कैसा यूज करते हैं, इसके अंदर अपन ये देखेंगे। अब इसके अंदर जैसा मैंने आपको बताया अभी पिछले स्लाइड में कि ये amazon AWS यूज करता है, गूगल GCP यूज करके डेवऑप्स करता है, माइक्रोसॉफ्ट का अपना अज्योर क्लाउड है, IBM का अपना प्राइवेट क्लाउड है, वो यूज करके प्रोजेक्ट्स करते हैं। अब जैसा फाइनेंस के अंदर ये जैसे फाइनेंशियल है, बैंक्स है, तो ये अपना इसको अभी नया आया है फाइन ऑप्स बोल के, पूरा फाइनेंशियल को ये लोग ना एक CI/CD जैसा अपन बोलते हैं, वैसा पूरा ऑपरेशंस कर देते हैं फाइनेंस में। जैसा कि आपके पास अभी गूगल पे चल रहा है, फोन पे चल रहा है, भारत पे चल रहा है, आपका इतना जल्दी मनी ट्रांजेक्शन हो जा रहा है, आपको इतनी जल्दी स्टेटमेंट्स मिल रहे हैं, हर चीज आपको एकदम स्मूथ और ऑटोमेटेड मैनर में हो रहा है। तो ये फाइन ऑप्स में हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस के अंदर बोले। ई कॉमर्स का अगर आप लिए तो ये फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, तो ये जैसे कि ई कॉमर्स में आता है। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि वॉलमार्ट का अभी तक जो सबसे बड़ा क्लस्टर माना जाता है, लाइक इन द सेंस क्लस्टर हम उसको बोलते हैं कि जो ग्रुप ऑफ सर्वर्स रहता, ये बहुत हैवी यूज के लिए होता। ये बेसिकली कुबरनेटिस में होता। इस कोर्स का सबसे बड़ा टूल है कुबरनेटिस। ये गूगल का प्रोडक्ट है, और इसके अंदर बहुत सारे आप चीज़ा टॉपिक्स देखेंगे, लाइक स्केलेबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, और बहुत सारे टॉपिक्स है इसके अंदर। तो उसके अंदर क्लस्टर बनाते हैं हम, और उसके अंदर क्लस्टर मैनेजमेंट सीखते हैं। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्लस्टर वॉलमार्ट का है, और बहुत हाईली पेबल क्लस्टर है उसका।
तो ये लोग अपने इनसे डेवऑप्स इंजीनियर से मैनेजमेंट कराते हैं अपने क्लस्टर का, और जितना भी उनको रिसोर्सेज चाहिए, जैसी उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो वो लोग ये ई कॉमर्स के वाले कराते हैं। ई हेल्थ में तो मेडिकल फैसिलिटीज में भी चल रहा है, और एंटरटेनमेंट में हाई गेमिंग के लिए और एनिमेशंस के लिए ये वहाँ पे भी ऑटोमेशन ही चल रहा है। लाइक ऑलमोस्ट यू कैन से ऑटोमेशन इज ऑन बूम। हर चीज लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई ऑटोमेटेड होना, हमको मैनुअल तरीके से करने को करना नहीं है। तो ये एज इन आप समझिए कि हर एक कंपनी कैसा ना कैसा डेवऑप्स कल्चर को लाना ही चाह रही है। अभी जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि मैं प्रीवियसली एक वाइटल ग्लोबल में कर रहा था, वो लोग का न्यू स्टार्टअप था। वो लोग मतलब मैनुअल से ऑटोमेशन के तरफ आ रहे थे। तो हम लोग को पूरा एक एक उनका एप्लीकेशन टेस्ट करना पड़ा कि भाई ये डेवऑप्स में कैसा चलेगा। उसके अंदर हम लोग को जो डेवलपर्स टीम थी उनसे कोलैबोरेट करना पड़ा। वो लोग को बहुत सारे चीज़ें, उनके जो मैनुअल तरीके थे वो हम लोग को नहीं चले। बहुत सारी दिक्कतें, मतलब हमारी पायलट बैच थी ना, हमको ये डेवऑप्स कल्चर लाना था। तो बहुत सारा टाइम गया उनसे बातचीत करने में, वो लोग को समझाने में, फिर वो लोग को बताने में। उनके डिपेंडेंसी चेक अलग थे, हम लोग डिपेंडेंसी चेक अलग यूज कर रहे थे, हमारा मेथड अलग था, वो लोग को कोड लिखने का अलग था। तो ये ऐसा बहुत सारे फ्रीक्वेंसी और अपने प्रॉब्लम्स आए एक ये लेकर आने में। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड विल सी। अब हम ये इसके कोर्स के डिटेल्स देखेंगे कि भाई ये कोर्स कैसा रहेगा, क्या रहेगा। तो बेसिकली ये एक 6 महीने का कोर्स है। ये 6 महीने के कोर्स के अंदर 3 मंथ्स अपन बेसिक्स लेंगे, जो कि लिनक्स, AWS, गिट, ये होगा, जो कि फंडामेंटल पार्ट में आता है। कोर डेवऑप्स टूल्स में गेन हैंड्स ऑन आता है, लिनक्स आता है, AWS आता है, गिट एंड गिट हब आता है, और जेनकिंग्स आता है। मीन्स इसके अंदर क्या करना है, आपको AWS का तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करना है, उसके कॉन्फ़िगरेशन लेके इंस्टेंस लॉन्च करना है। उसके ऊपर आप कमांड लाइन कैसे चलाएंगे। कमांड लाइन अगर आपको चलाना है तो मतलब आपके लिनक्स की कमांड्स आ जाएंगी, और उसके अंदर आपका लिनक्स हो जाएगा। जेनकिंग्स के लिए ऑटोमेशन के लिए, जब अपन ऑटोमेट करेंगे कोई भी चीज को, एप्लीकेशन को, तो CI/CD पाइपलाइन लगेंगी। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये जो गिटहब है, गिटहब क्या है, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं इसको। ये आप लोग ऐसा समझिए, जैसा मैं आपको बताया डेवलपर और ऑपरेशंस के बीच में काम करना है। तो एक स्टैग रहता कि भाई आपने कितना काम करे, इन्होंने कितना काम करे, कितने कमिट हुए, कितने पुल हुए, कितने चीज़ें पुश हुए। तो एक पर्टिकुलर रजिस्ट्री पे जाके स्टोर होते हैं चीज़ें। तो ऐसा गिट एंड गिटहब रहता। तो अपन फंडामेंटल्स में वो देखेंगे। और शेल स्क्रिप्टिंग में जो टास्क ऑटोमेशंस रहते, उसके उसके अंदर अपन उसके बाद फंडामेंटल्स में शेल स्क्रिप्टिंग भी देखेंगे। और कई इसके अंदर अगर आप लोग को अगर टॉपिक्स चाहिए, ऐड ऑन चाहिए, कुछ नया आया है मेरी तरफ से, वो भी अपन कर लेंगे। ऐसा इतना कुछ वो नहीं है कि सिर्फ स्पेसिफिक इतना ही लिखे हुआ है तो ऐसा करेंगे। विल डू ऑल अदर थिंग्स एज वेल। एंड द कोर, ये जो डेवऑप्स, आफ्टर दैट विल डू द डेवऑप्स कोर टूल्स। इसके अंदर बेसिक्स तो इंक्लूडेड ही रहेंगे। ऑटोमेशन में CI/CD पाइपलाइंस रहेंगे। फर्स्ट विल डू डॉकर, बिकॉज डॉकर इज सिंगल होस्ट कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल। तो इसको कैसा रन करना है। इसके बाद मल्टी होस्ट ऑर्केस्ट्रेशन टूल, जो कि मैंने अभी आपको बोला है, क्यूबरनेटिस रहेगा, वो करेंगे। ये कोर टूल्स में रहेगा। और एडवांस कॉन्सेप्ट इसके अंदर रहेगा, लाइक अपन छोटे छोटे इसके अंदर प्रोजेक्ट्स करेंगे, इसको चीज़ों को ऑटोमेट करेंगे। ये सब जितने भी असेंशियल टूल्स है, कोर टूल्स है, तो वो चीज़ अपन सब एडवांस में यूज करके एक अच्छा प्रोजेक्ट्स बनेंगे। फिर उसके बाद
ये कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जो है इसके अंदर अपने एक फुल प्रोडक्शन बेस्ड जैसा साइकिल रहती है। लाइक पूरा डेवऑप्स कैसा चलता है, आप वहां जाके कैसा काम करेंगे, कैसे चीजें चलेंगे, एज अ प्रोडक्शन बेस्ड अपन एक पूरा एंड टू एंड प्रोजेक्ट करेंगे इसके अंदर। एंड फिर उसके बाद अपन एंसिबल पढ़ेंगे। अभी मैं आपको कोर्स से समझाऊंगा कि एंसिबल्स में क्या रहता है, ये क्या रहता है। बेसिकली एंसिबल क्या रहता है, जैसे कि आपने एडब्ल्यूएस का वो ले लिए, एक इंस्टेंस ले लिए। अब उसको आपको इंस्टेंस पे आपको क्या करना है, तो आपको इंस्टेंस पे इंस्टॉलेशन करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने लैपटॉप ले लिया, लैपटॉप आपने घर पे ला लिए, ये हो गया एडब्ल्यूएस का पार्ट। अब उसके बाद आपने घर पे लाके उसको सेटअप कर दिए, तो वो हो गया टेराफॉर्म। एज इन ये आपने सेटअप कर दिया पूरा आपके घर पे टेराफॉर्म। अगर आपने उसके ऊपर गेम डाले या उसके आपने आपने पिक्चर डाले, तो ये हो गया टेरा एनसिबल का काम। ये है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, और ये है कॉन्फ़िगरेशन एज अ कोड। इससे आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, लाइक इन द सेंस अगर आपको एक इंस्टेंस बनाना है, अगर आपकी कोई कंपनी ने बोली हमको एट अ टाइम 100 इंस्टेंस चाहिए, तो आप सिंगल स्क्रिप्ट से आप टेराफॉर्म कैसा चला सकते हैं, कैसा इंस्टेंस बना सकते हैं, तो वो टेराफॉर्म से करेंगे। और उसके ऊपर जो अगर आपको बोले कि भाई हमको इसके ऊपर पूरों के ऊपर हमको एक 5 मिनट में अपाचे सर्वर इंस्टॉल चाहिए, तो आप एक सिंगल एंसिबल स्क्रिप्ट से पूरा सब पे अपाचे एनजीनिक सर्वर इंस्टॉल कर सकते। फिर अपन जो क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ जाएंगे, मतलब एक पूरा एंड टू एंड एक्सप्लोजर देखेंगे अपन एडब्ल्यूएस में। व्हाट इज क्लाउड, व्हाट इज EC2, स्टोरेज के ब्रीफली स्टोरेज के चीज़ें देखेंगे कि भाई उसके अंदर कैसा इंस्टेंस होस्ट करना है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर है अभी जो कुछ लेटेस्ट में चल रहा है। तो ये सब एंड टू एंड अपन सिक्योरिटी पर्पस इसके अंदर क्या यूज होते हैं, और इसके अंदर अपन कैसा एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, सब इसके अंदर AWS क्लाउड में देखेंगे। और लास्टली एज एन इंटर्न्स अभी ये बहुत चल रहा है कि मॉनिटरिंग टूल्स विच इज प्रोमीथियस एंड ग्राफाना। तो ये इसके अंदर कैसा एप्लीकेशन को मॉनिटर करना है, कौन CPU और कैसा CPU चेक करना है, कैसे अलर्ट्स लगाना है, इतना लिमिट के बाद इतना नहीं चलना चाहिए, लॉग्स कैसे चेक करना है। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द प्रोमीथियस एंड ग्राफाना। करियर एक्सेलेंस की अगर बात करें अपन, तो यहाँ पर अपन एक कैसा लेने वाले हैं कि एक 90 डेज चैलेंज लेने वाले। 90 डेज आपको इन द सेंस आपको उसे एक टास्क करना है, उसको उसके पूरे स्नैपशॉट्स लेना है, और उसको लिंक्डइन पे पोस्ट करना है, और पूरा उसको डिटेल में डालना है कि भाई कैसा करे, क्या क्या यूज हुआ, क्यों करे, हर हर चीज डिटेल्स में डाल के उसके स्नैपशॉट्स के साथ उसको लिंक्डइन पे पोस्ट करना है। तो इन द सेंस अपनी क्या होंगे, पैरेलल लिंक्डइन की एक अच्छी प्रोफाइल तैयार होंगी। तो वो लाइक उसके अंदर 45 डेज तो नॉर्मली है, मतलब थेरी पार्ट है और छोटे छोटे प्रोजेक्ट है। जो 45 डेज के बाद जो आपको थोड़ा सा एडवांस में उन्हें लिख जाता, तो उसके अंदर आपके प्रोजेक्ट्स है, और थोड़ा आपको उसके अंदर AWS के जो रिसोर्सेस है वो ज्यादा यूज करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा उधर लेंदी हो जाएगा, बट वो खासा आपका कैसा उसको अच्छा इम्फोसाइज करके डालना है वो देखेंगे। एंड इसके अंदर इंटर्नशिप का जो आप लिखा हुआ है, अब मेरे पास जो भी इंटर्नशिप है लिंक्डइन पे है या मेरे कोई कंपनी में स्पेस है, और जो जो नए नए पोस्ट आते रहते हैं, तो वो मैं आप लोग से तो करते ही रहूंगा। एंड ATS फ्री की भाई मेरा जो रेज्यूमे है वो 75% ATS फ्री है, इन द सेंस कि 60 to 65 नॉर्मली रहना चाहिए एक टेक स्टैक में आपको एंट्री लेने के लिए, या ATS को आपको क्वालिफाई करने के लिए। तो मेरा है 75%। तो ये 75% है, हुआ कैसा, मैंने ऐसा क्या डाल दिया उसके अंदर कि वो 75 हुआ, मैंने क्या कीवर्ड्स यूज करा, मैंने कौन से प्रोजेक्ट्स डाला, मैंने कौन सा टेक्स्ट टैग्स डाला, उसके अंदर ऑन डिमांड मार्केट में अभी क्या चल रहा है, जैसे कि इन द सेंस अभी AI ऑप्स और ML ऑप्स ज्यादा चल रहा,
फाइन ऑप्स आ रहा है, बट फाइनेंशियल के इंडस्ट्री तक आ रहा है। टेक स्टैक में अभी ये 10 to 15 टूल्स तो चल ही रहे हैं, बट इन अब इसके आगे क्या आ रहा है, नए टूल्स क्या आ रहे हैं, उसके अंदर प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, तो वो सब अपन देखेंगे। मॉक इंटरव्यूज का मेरे पास भी काफी सारे क्वेश्चंस है। मैंने जितने भी अभी तक इंटरव्यू दिया हूँ, इसके अंदर अपन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन लेंगे। मेरे पास एज अ मैडम सेट कि आई एम AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट, तो मेरे पास पूरे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस है। ये जितने भी मैंने ये एग्जाम में दिया हूँ, वो अपने उसके डम्स लेके अपने को प्रॉपरली उसका एग्जीक्यूशन करेंगे। पूरे सिनेरियो लेके भाई क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्या अपने से करना चाह रहा है, वो पूरे क्वेश्चंस को अपन देखेंगे। उससे पहले अपन जो CCP रहता, फर्स्ट लेवल का जो सर्टिफिकेशन रहता है डेवऑप्स के अंदर, AWS का, तो अपन उसके वो तो मतलब बेसिकली जर्नल क्वेश्चन ही होते हैं। AWS में क्या क्या रिसोर्सेस है, कितने हैं, बिलिंग क्या रहती है, उसके क्या क्राइटेरिया रहते हैं, तो दैट्स ऑल विल डू इन दिस इंटरव्यू प्रोसेस। सो द शेड्यूल एंड फीस स्ट्रक्चर इज बेसिकली ये रोज क्लास रहेंगी मंडे टू सैटरडे, और टोटल मीन्स 6 मंथ्स का अगर आप देखा जाए तो 360 आवर्स की लर्निंग है इसके अंदर। 4 PM to 6 PM प्रैक्टिकल करेंगे, 6 PM to 8 PM थेरी करेंगे हम। एंड बेसिक फीस 30,000 है। अगर आप 1 टाइम पेमेंट करें तो इसकी 25,000 है। तो ये ऐसा कुछ रहेगा। और मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस दिखाना चाहता हूँ, इसको स्टॉप करके। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हेलो। Yes, sir. दिख रही sir. जी। सो बेसिकली विल स्टार्ट विथ लिनक्स। अपन लिनक्स के पहले फंडामेंटल्स देखेंगे। व्हाट इज OS, फाइल सिस्टम क्या रहता है, यूजर मैनेजमेंट कैसा रहता है, परमिशंस कैसे रहते हैं। फिर शेल स्क्रिप्टिंग में अपन देखेंगे ऑटोमेशन, एक स्क्रिप्ट से बैकअप कैसे लेना है, और क्रॉन टैप कैसे, क्रॉन टैप इन द सेंस लाइक अलार्म जैसा आप एक लगाते हैं कि भाई इतने टाइम पे ये एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, उतने टाइम पे ये एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो ऐसा हम शेल स्क्रिप्ट से देखेंगे। फिर बेसिकली ये पूरा इधर लिनक्स कवर हो जाएगा। और कोई इसके छोटे छोटे व्हाट यू कैन से वो रहते हैं, कमांड्स रहते हैं, वो उसके डिटेल्स देख लेंगे, उसका यूजेज कैसा रहता है। फिर गिट एंड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में ब्रांचेस देखेंगे, मर्ज देखेंगे, ऐसे SSH कीज के साथ कैसा उसको व्हाट यू कैन से परमिशंस देना है। जेनकिंग्स का इसके अंदर बेसिक पार्ट देखेंगे, और एक बेसिक पाइपलाइन बनाएंगे। ज्यादा इसके अंदर कोड डिटेल्स में नहीं जाएंगे। जब अपन मेगा प्रोजेक्ट करेंगे इसका पूरा, फिर जेनकिंग्स का कैसा करना है, विच इज ईयर जेनकिंग्स एडवांस बोल के कोड टूल्स में, तो पाइपलाइन कैसा है, कोड कैसा, इंटीग्रेशन कैसा करना है, वो इधर देखेंगे। फिर जब अपन कोर पार्ट में आएंगे, डॉकर एज एन आई सेड कंटेनर, कंटेनर्स को कैसा रन करना है, स्टॉप कैसा करना है, इमेजेस कैसे बनाना है, डॉकर फाइल, डॉकर कंपोज, और उसका एक मिनी प्रोजेक्ट। जितने भी चीजें हमने किया है, हर एक टॉपिक के बाद अपन एक मिनी प्रोजेक्ट रखेंगे, फुल एंड टू एंड जितना भी अभी तक अपन ने करे। फिर उसके बाद ये इधर थोड़ा अपने को टाइम देना पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टूल है। इसके अंदर पॉड्स रहते हैं, डिप्लॉयमेंट्स रहते हैं, सर्विसेज है, कॉन्फ़िग मैप है, सीक्रेट्स है, हेल्म चार्ट है। तो ऐसे इसके काफी सारे कंपोनेंट है। इसका भी एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट लेंगे ये क्यूबरनेटिस करे के बाद। जेनकिंग्स एज आई सेड कि हर एक फुल मिनी प्रोजेक्ट के बाद उसको अपने को तो ऑटोमेशन करना ही है CI/CD से।
तो वो यूज हो जाएगा। अब इसके बाद अपन एक टेराफॉर्म लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड है, वेरिएबल्स, मॉड्यूल्स, और एडब्ल्यूएस की प्रोविजनिंग कैसे करना है, एट अ टाइम कितने इंस्टेंस लॉन्च करना है, लाइक 100, 50 एक साथ कैसे लॉन्च करना है। और फिर एडब्ल्यूएस के क्लाउड कंप्यूटिंग में अपन लेंगे आईएएम कैसे कंपोनेंट्स लेंगे, आईएएम, EC2, VPC, S3, राउट 53, लैम्डा, क्लाउड वॉच, और डेटाबेस के स्नोफ्लेक्स हो गया, रेडशिफ्ट हो गया। तो ये सारे हम लोग क्लाउड असेंशियल्स में लेंगे। एंसिबल से कैसा कॉन्फ़िगर करेंगे एडब्ल्यूएस प्रोविजनिंग को, प्लेबुक्स कैसे लिखेंगे, रोल्स कैसे लिखेंगे, इन्वेंटरीज कैसे बनेंगे, ये सब देखेंगे। मॉनिटरिंग में एज आई सेड डैशबोर्ड्स लॉन्च करेंगे अपने प्रोमेथियस का और ग्राफाना का, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे कि भाई कितना इसके अंदर सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रहा। अलर्ट्स लगाएंगे कि भाई इतना ही यूटिलाइज होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। लॉग्स चेक करते रहेंगे, कहाँ एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो दिस इज व्हाट वी विल गोइंग टू सी इन दिस पार्ट। ये इसके अंदर एक सब पार्ट भी है जो कि बहुत कोर मैंने बनाया हूँ, मैं आप लोग से मैडम के थ्रू शेयर कराने लगूंगा कि और इसके अंदर कैसे कैसे अपन प्रोजेक्ट्स रखेंगे और कैसा इसके और कंपोनेंट्स देखेंगे। सो या दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। Any questions from your side, guys? आप पूछ सकते हैं। सर 6 महीने में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जी मैडम, हो जाएंगे। अपन AWS 2 बार देखेंगे, एक बार फेज 1 में और फिर बाद में थर्ड फेज में एडवांस टूल में, ऐसा 2 बार हम AWS को पढ़ेंगे। जी जी। ओके ओके। Any questions from your side, guys?